Hello students, good morning all. How are you all? I hope that you all are fine. Okay students. So in our last lecture we seen exercise 2.3 fifth question second sum. Now today I am going to teach you our third one. Okay students, fx is equal to x where x belongs to r. So we have given the domain is capital R. Solution answer here fx is equal to x where x belongs to r. Given function. Okay students, which is given function, and I give it number result number 1. Now for find the range of f, take y is equals to fx. That implies y is equals to x. You know that because the fx, the value of fx is given in our sum, which is x. I give it number 2 from 1. Okay students, now we're using our domain. Okay students, for all x where x belongs to r. Okay, x belongs to r. That means x belongs to r, but the value of x which is given in our result number 2, we may write that implies y belongs to r. Why? Because of result 2, because of from 2. That means our range is also capital R. Therefore final answer, therefore the range of f is equals to rf is equals to curly bracket y where x comma y belongs to f is equals to y where y belongs to r is equals to y belongs to r. Okay, so is your complete our third one, which is very easy. Okay students, the sum is going simple and easy. I hope you understand, same as we do in our previous sum. Just or otherwise I say just follow our previous sum. But if you see our function, then which number you put, you get that number. That means you put 1, you get 1. Put 2, get 2. Put 3, get 3. That means if which number you put in your function, you get that number. Okay students, so y is also, that means the range is also our set of real number. Okay students, let's see. Next one, exercise 2.3 question 2. Find the domain and range of the following real functions. So we have given here some real functions and we have to find our functions for domain and range. Okay students, in a previous example we find only range of the function, but in this example we find the both domain and also range. So let's see. So here answer, here fx is equals to minus of modulus of x where x belongs to r, because of the given function is a real functions. Okay, that means obviously the axis belongs to our capital R, but we have to find, we have to ask in a question that find the domain. So we find out in our method. Now for all x where x belongs to capital R. Okay, now for all x where x belongs to capital R, therefore the domain of f is equals to, in a curly bracket, or df is equals to, in a curly bracket, x where x comma y belongs to f is equals to x belongs to r, or I say x where x belongs to capital R is equals to x belongs to capital R. Now for find
range of f, we take y is equals to fx. That implies y is equals to modulus of minus x because of our result 1. Okay, now we use our domain for all x, where x belongs to capital R. Okay, students. Therefore, that implies x belongs to capital R, or we may write modulus x, which is greater or equal to 0. Because of the modulus of x, that means the every real numbers. If you take every real numbers, if you take modulus of every real number, then you get a positive real numbers. Okay, and in this real number there are one number which is 0. Okay, so the modulus of 0 which is also 0. That means अगर आप किसी भी रियल नंबर का मॉड्यूलस लेंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा ही आएगा. और एक नंबर हमारा रियल नंबर में 0 भी है, इसका मतलब 0 के इक्वल भी आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई मल्टीप्लाई minus on both the side, then the inequality will be changed. That means minus of modulus x, which is less or equal to 0. Okay students, ये एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी हमारा चैप्टर नंबर 6 है. अब जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब ये इनइक्वालिटी वाला टॉपिक आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा. पर अब से अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई भी इनइक्वालिटी हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस और इक्वल टू हो या ग्रेटर और इक्वल टू हो, उसके दोनों साइड आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब लेस देन का ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, लेस और इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर इक्वल टू का लेस और इक्वल टू हो जाएगा. सो हमारा ग्रेटर इक्वल टू तो था, तो हमने क्या किया, लेस और इक्वल टू. इसका आंसर हमारे पास है, अभी मैंने देखा क्या है, तो हमारे रिजल्ट नंबर 2 में है y. दैट इम्प्लाइज y विच इज लेस और इक्वल टू 0. और इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज 0. और ऐसे y की जो वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव साइड पे जा रही है, तो ओपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 क्लोज. क्योंकि एक आंसर आपका 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा है. ओके, तो आपकी y की एक वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 0, मतलब y का एक आंसर 0 तो आएगा ही, और उसके अलावा सब नेगेटिव नंबर आएंगे. तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा माइनस इन्फिनिटी और 0 क्लोज. सो देयरफॉर द फाइनल आंसर, देयरफॉर द range of f is equals to rf, and which is equals to the curly bracket y, where x comma y belongs to f, is equals to y, where y less or equals to 0 comma y belongs to r is equals to y less or equal to 0 or y belongs to open minus infinity comma 2 close. तो ये हो गया आपका, हमने 2 क्वेश्चन पूछा था, डोमेन, और ये हो गया हमारा रेंज. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा खास समझना है कैसे किया है. बाकी जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसे ही हमने सिर्फ फॉलो किया है, सेम एज. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ we have some important notes, because of these notes are useful for our next sums. Okay students, let's see. The first remark is the square root of x square is equal to modulus of x. Okay students, इसका मतलब कि आपके स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाला नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 4 होगा, बराबर ना, जो 2 स्क्वायर है, 16 होगा जो 4 स्क्वायर है, 9 होगा जो 3 स्क्वायर है. ऐसा कोई भी नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ x. उसके बाद सेकंड नोट, स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर. दैट मीन्स स्क्वायर रूट, कोई भी स्क्वायर रूट नंबर होगा और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो आंसर आपका आएगा. इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट को क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा. कैसे, तो इसका आंसर हाफ आएगा, रेज टू हाफ, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x आएगा. सेम यहाँ भी ऐसा ही है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेम ऐसा ही है, पर यहाँ मॉड्यूलस x लिखा सिर्फ ऐसे ही. ओके, अभी अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a होगा
तो उसका आंसर क्या आएगा, तो माइनस है लेस देन एक्स लेस देन स्मॉल है, मतलब जो एक्स की जो वैल्यू है ना वो किसके बिटवीन होगा, तो जो भी नंबर होगा जो मॉड्यूलस एक्स है विच इज लेस देन जो भी नंबर होगा, ओके, तो वो नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल लेस देन यहाँ पे 2 है, सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, इसका मतलब जो हमारा एक्स है वो किसके बिटवीन है, तो के -2 और 2 के बिटवीन होगा। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू ए होगा, इसका मतलब सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है और यहाँ पे स्लैक साइन है, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे स्ट्रिक्ट लेस देन है और यहाँ पे दो इनइक्वालिटी साथ में, मतलब लेस और इक्वल है, तो वहाँ भी सेम ऐसा ही माइनस है लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए आएगा। सेम एग्जांपल सपोज यहाँ 2 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू होगा तो -2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, इसका मतलब जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है वो सपोज ए इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 -2 के बराबर भी आएगा और 2 के बराबर भी आएगा, और उसके बिटवीन जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी के बराबर आएगा, एक्स का जो भी आंसर है वो। और ये जो लास्ट नोट है वो आपको खास समझना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट के सम्स है, ऐसे फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर भी हमें दिए हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी आपका फंक्शन दिया होगा, कोई भी नंबर होगा, और इम्पोर्टेंट बात नेगेटिव नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये नोट में हमें दिया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई नंबर्स है जो स्क्वायर रूट के अंदर है और कई ऐसे फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हमें उस फंक्शन के रेंज और डोमेन फाइंड करने होंगे तो उसके लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट क्या होगी, तो हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट होगी, सपोज स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म है, कोई भी मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x-2 ले लेता हूँ सपोज, ऐसे आपको समझाने के लिए। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है x-2 वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर 0 होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ऑफ 0 होगा तो 0 स्क्वायर रूट का आंसर 0 ही आएगा, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। पर ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बराबर इक्वल टू 0 और 0 से ज्यादा बराबर, मतलब के पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे -3 आएगा, माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन अभी मैंने बोला कि नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये आपकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको खास नोट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो 2 सम्स देखे प्रीवियस आगे, ओके 2 सम हमने आज कंप्लीट किए। अभी हमारा जो 2.3 है एक्सरसाइज, उसका हमने एक तो अभी इसके पहले हमने किया, अभी एक दूसरा हमारा बाकी है, उसके बाद हमारा 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मिसलेनियस वाले सम्स है और थोड़े डेफिनेशंस है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको फ्यूचर में काम लगेंगे, वही सिर्फ बाकी है। इसके अलावा तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। सो ये जो मैंने नोट अभी यहाँ पे लिखा है, रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंडेंस कई फंक्शंस आएंगे जिसका हम डोमेन और रेंज फाइंड करने होंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें ये सब समझना चाहिए, खास तो ये लास्ट नोट और ये 2 भी, क्योंकि इसका यूज़ हमें आएगा इन फ्यूचर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप दैट you understand in today's both sums, and I hope you write your material properly. Okay students, thank you.